Okay. So the cue card we are going to discuss today is describe a party in which you did not like the background music. Okay. When, where, when, who, and explain why you didn't like the music. So when was it, where was it, who was with you, and describe why you didn't like the background music. ठीक है, Yes, Mishika? ma'am. Take Yes, 1 ma'am. minute to prepare. Take your 1 minute to prepare. And Yes, उसके ma'am. बाद 2 minutes मैं आपको दूंगी. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. मैम एक और क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज. डिस्क्राइब अ पार्टी. Describe a party in which you did not like the background music. और बाकी वो 5 W's है. ठीक है? ओके मैम. Naughty. Juggernaut. Look at the juggernaut. Ma'am, naughty is looking very cute. Juggernaut है juggernaut. पूरा तूफान name. Wow. Always looking at something for, making mischief. Cute. इसको पता है इसके हाथ पे लगेगी. ये देखना अपना हाथ बाईपास करके ना मेरे हाथ को काटे. 1 minute over, Mishika. Yes, Why ma'am. you not liked? So, I'm a party animal. I like to attend a lot of parties, and as I'm an artist, so I'm more inclined towards Western music as well as traditional music. But today, I'm going to talk about a party where I didn't like its background music. So, last year, I went at my cousin's place. My cousins kept a party at her place, and she invited a lot of her friends, and there were some of her friends which I also know them very well. So when I went over there, I found out that there were a lot of people, and in fact her relatives were also there, and the party was quite good, but after some time I saw that they started playing retro music and old classic traditional kind of music. And as I mentioned earlier, that I'm more inclined towards Western music such as hip hop culture and pop music. So I didn't like that music, and I was feeling very irritated at that time, and I was not able to express my feelings. I was not able to share my sentiments, and I always like to dance on in the party, but at that time I was not able to perform as well, and I felt very bad. But then I saw that I found out my best friend, so she was also enjoying over there, and then I started chatting with her, and like this I just spent my time. And after some time I went to the DJ and I requested him that to please go for Western music, but as a lot of majority over there Okay, बस बस. was Okay. 2 minutes. 2 minutes. Mishika, बहुत अच्छा. okay, ma'am. Okay, very nice. अच्छा, 2 minor mistakes थी. किसी और ने पकड़ी है? और lot. मैम एक तो मेरी समझ में चैटिंग को जो बोला है मैम, चैटिंग कर सकते हैं ऐसे. हाँ, चैटिंग तो फोन से होती Chatting. है I ना. started chatting with her. बिल्कुल सही है. That too. हाँ, गलत है ना. Went to नहीं, the chatting lots of सही है. friends. Connectors. हाँ? Yes, Or ma'am. lots of friends. क्या? Ma'am, repetition of so word. And वो also. so तो repeat होता है. That is She not an didn't issue use at all. connectors. Okay. हाँ, Okay. हाँ, बोलो. Ma'am, she have talked Ma'am, this she or didn't lots of use friends. connectors. नहीं, connectors forced in नहीं, उसका बहुत अच्छा बोला गया है. मैं तो ऐसा बोलने को prefer करूंगी than using furthermore, moreover, unnecessarily. Okay? Ma'am, मैम कितने वो band सही हो बोला गए? है, वो सही Ma'am. बोला है. मैं मैम, इसको 7.5 बैंड दे रही हूँ आज. Great. Ma'am, हाँ.
मैम दैट और टू एक साथ आया था हाँ तो वो गलत है, दैट टू गलत है। एक इसने बोला था फ्रेंड्स विच, फ्रेंड्स के लिए हु होता है या दैट होता है? होम हाँ Yes, हाँ ma'am. फ्रेंड्स के साथ Ma'am. which नहीं होता मिशिका, ध्यान देना। ओके Yes, दूसरा ना ma'am. रिक्वेस्टेड टू प्लीज, रिक्वेस्टेड भी डाल रहे हो, प्लीज भी डाल रहे हो, ओवरडूइंग है। Yes, ma'am. I Okay. requested him to play soft music or some other music, okay, which you like, Yes. जो आपने Ma'am, she said went to DJ. नहीं नहीं Went. went to the DJ person, ऐसे बोल दो ना। Yes, ma'am. She Went to said the went to DJ. DJ is a person only. Went to the DJ and told him to play that. Okay? Ma'am, all Okay, lots ma'am. of friends. हाँ? All lots of friend उन्होंने बोला था। मिशिका। I spotted my friend बोल सकती थी, पर ठीक है, उसका natural लगा. She spoke well. Okay? Okay. And you note one thing. She went on for complete 2 minutes. She finished all the cues, who, what, where, when, everything she said. Then Yes. her consistency, the speed at which she started was that till the end. It wasn't कि Exactly. शुरू में शताब्दी और end में मालगाड़ी. It wasn't like that. ठीक है? अच्छा बोला ये. हाँ, तो ये सारी चीजें काउंट होती हैं। Yes. मैम एक चीज और हाँ बोले थे, मैम बहुत अच्छा बोला आई फाउंड, तो मैं फाउंड तो बोल सकते हैं ना, आई फाउंड वन फ्रेंड्स। हाँ, I found one friend है, spotted ज्यादा बेटर लगेगा। आप जब करेक्ट कर ही रहे हो तो फाउंड भी ठीक है। I spotted a friend over there, an old friend, ठीक है, in the party। और ये भी बोल सकते हो, देखो अगर आपको म्यूजिक नहीं ना अच्छा लगा तो म्यूजिक was being played inside, so she went outside, there were some stalls of eatables, so she enjoyed over there. So you can say I enjoyed, I went out with my family, it was so the music was very boring, so we went outside in the lawn, there were some eatable stalls over there, and we had she can say some things to eat over there. Okay? Yes, ma'am. Like that. मैम मेरी स्पीकिंग टीचर ने बोला है कि मैं जब भी बोलती तो अ का साउंड ज्यादा आता है, तो आज थोड़ा था वो या नहीं नॉर्मल नहीं, था? मुझे बहुत अच्छा लगा है मिशिका। It was sounding quite natural, normal. Don't worry. Okay, ma'am. Be yourself in your speaking. Okay? Yes, ma'am. Speak Yes, with ma'am. full confidence. Just be yourself. Don't force in words which you did not do. Okay? Yes, वो ma'am. funny लगते हैं, furthermore, moreover, just घुसेड़ने के लिए घुसेड़ते हैं बच्चे की, ये हाँ connected मैम। है। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. वो तो बिल्कुल, वो तो बड़े फनी लगते हैं। वो इनफैक्ट नहीं डालने बेटर है, मतलब अपने आप लगे कहीं तो लगे, बट उनको डालने के लिए सेंटेंस बुनते हैं तो वो गलत हो जाता है। Yes, ma'am. हाँ, वो गलत हो जाता है। एंड Ma'am- आपको कनेक्टर्स का एक मैंने वीडियो दिया था, सब बच्चों ने देखा है, मैंने नोट करा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि आपके कनेक्टर्स जो है स्टैंड आउट नहीं करने चाहिए, दे शुड लुक वेरी नॉर्मल। मैम अगर कंक्लूजन नहीं बोल पाते, हाँ मैम अगर कंक्लूजन नहीं बोल पाते तो बैंड पे इफेक्ट होती है? दिवांगिनी, कंक्लूजन का मैं आपको समझाती हूँ। हर क्यू कार्ड के नीचे ना 3-4 क्यूज की लाइंस होती हैं, ठीक है? Yes. आप अगर उसमें से कुछ मिस करोगे तो बैंक स्कोर पे फर्क पड़ेगा। आपको क्या है, मैं जो एडवाइस देती हूँ ना, मैं ये एडवाइस देती हूँ कि पहले 30-40 सेकंड्स में ना क्यू कार्ड की सारी लाइंस को कवर कर दो, ओके? और उसके बाद एक्सपेंशन करो। एग्जामिनर ने आपको 1.5 मिनट से ज्यादा बुलवाना भी नहीं है फिर, because examiners keep waiting, the student will finish, okay? Okay. 2 मिनट। मैम एक और बात पूछनी थी। मेरी स्पीकिंग वाली टीचर ने बोला है कि जैसे आपके क्यू कार्ड्स हो जाते हो, जब आपको स्टॉप भी बोल देते तो लास्ट में आपको एक लाइन बोल देनी है कि ओके सो दिस वाज माय इंसिडेंट, और ऐसा नहीं है ना? स्टॉप कर दे तो स्टॉप हो जाओ। ओके मैम। That is a matter of respect, isn't it? Yes, ma'am. The examiner is stopping you. You know, I tell you a Absolutely. very funny incident that happened with one of my students. एक ना हिस्ट्री है, हिस्ट्री का टॉपिक, उसमें मैंने क्यू कार्ड कराया था। हिस्ट्री is the witness of the times. Okay? The torch, the teacher of life, the life of memory, the messenger of antiquity. अब उस बच्चे ने ना इसको रट्टा मार लिया। अब उसको कोई हिस्टोरिकल इवेंट का कोई क्यू कार्ड आ गया, अब ये रट्टा लगा हुआ था तो उसका बड़ा मन था ये सुनाए, तो वो एग्जामिनर उसको रोक रहा है। वो कह रहा है, मैडम मैंने भी उसको बोला, मैंने याद किया, सुन अब सुन। तो मैं पूरा बोल के आया। अच्छा, अब 5:30 बैंड थे उसके उस टाइम, तो एग्जामिनर्स फील ऑफेंडेड अगर वो रोक रहे हैं और आप बोली जा रहे हो। Yes, Okay? ma'am. हाँ मैम एक क्वेश्चन, हाँ ये हमारी जो मकर की बुक में दी है
वो क्यू कार्ड हम बोलते हैं तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि वो सेम स्टोरी बोलेंगे तो बैंड नहीं आएंगे, ऐसा कुछ होता है? देखो बेटे, आपको ना सेम स्टोरी बोलने पे भी आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। वो ही क्यू कार्ड बोल के एक स्टूडेंट 5 बैंड लाएगा और एक स्टूडेंट 8 बैंड लाएगा। इट इज ऑन द वे यू स्पीक। ओके, आप उसको एज आइडिया लो, उसमें थोड़ी इंडिविजुअलिटी ओरिजिनलिटी डाल लो। रट्टा तो मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि मारो। सेकंड हाँ, थिंग, वो सेम जस्ट नहीं, लिसन, हाँ मेरी बात सुनो। पर थोड़ा सा। आप सब मेरी बात सुनो, आप सब लोग पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में आप एग्जामिनर्स के पास जा रहे हो। पहली बात, सबको एक एग्जामिनर आने नहीं वाला। यस मैम। दूसरी बात, सबको एक क्यू कार्ड आने नहीं वाला। यस मैम। ठीक है, सबका एक डेट पे टेस्ट नहीं हो रहा। यस मैम। तो आप क्यों डर रहे हो इस चीज से? आप हल्का सा उसको चेंज करके अपने तरीके से बोलो। अब देखो, अगर मैंने रेस्टोरेंट में हवेली बोला है तो जो गुजरात में रहते हैं उनको हवेली की जगह कुछ और बोलना पड़ेगा ना। वो हवेली पंजाब वाली थोड़ी बोल सकते हैं कि यू नो इट्स अ प्लेस वेयर आई वुड लाइक टू गो अगेन एंड अगेन। तो मैम आपने जो दे रखे हैं सिर्फ एक इससे आइडिया ही तो लेना है ना। हाँ, बोलना तो आइडिया आप लेना, आप अपनी उसको लैंग्वेज थोड़ा, में। हाँ देखो यही मैं कहती हूँ, थोड़ा आइडिया लो और अपना और बनाओ। और Yes. मैम वो कोई भी पूरा याद थोड़ी नहीं कर पाएगा जितना अभी आपने दिया है। अरे नहीं, ये तो आप भूल याद जाओ। याद करने की नहीं। जरूरत भी नहीं मैंने तो है। ऐसे रट्टे वाले बच्चे देखे हैं जो पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा बोल सकते हैं। हमारे पास की बात Like नहीं है me. मैम। सही। कैन नॉट हेल्प ओके, इट। और जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी रट्टा मास्टर थी, बहुत तगड़ा। ओके, 2 ओके, रजिस्टर होते थे केमिस्ट्री के, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक एक साथ बोल सकती थी 2 घंटे में। ओके। और समझ के साथ था, ये ऐसे नहीं था रट्टा था। आई यूज्ड टू टॉप, आई यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड मेमोरी। वंस अपॉन अ टाइम, दैट वंस अपॉन अ टाइम कैपिटल लेटर्स में चला गया। अब तो मेमोरी बहुत पुअर है। ठीक है, शैम्पू, अब तो शैम्पू का भी पता नहीं चलता कब कौन सा गया है। मैं बता रही थी कल। वही तो मैं बता रही हूँ, अब तो वंस अपॉन अ टाइम मेमोरी बहुत अच्छी थी भाई। दैट वंस अपॉन अ टाइम। ओके यस मैम। मैम, हाँ आपने लिखे क्यू सभी कार्ड में हाँ 5 W's है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच। हाँ। ये सीक्वेंस है इसका कुछ, या हम कैसे भी ऊपर नीचे करके? कैसे भी, पर आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने सारे नीचे वाले क्यूज कवर कर दिए। Okay, ma'am. First of all, we have to answer all that questions which are given in the cue card. Yes. I suggest that. You know, it gives a completion to your cue card, and then even when you don't go on for full 2 minutes, you are done with your cue card. Examiner can stop you. Okay. That is it. Okay, ma'am. हाँ, ठीक है। मैम ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ बेटे मेरे बेटा बेटी सिस्टर नेफ्यू सारी टीम है। तो लिख देने हैं मैम फट। ਨੂਰਾ ਵਾਲਾ आपने लिखा रिस्की सिचुएशन। वो क्या था उसके अंदर, क्या रिस्की सिचुएशन थी? ਨੂਰਾ ਤੇ ਐਨ मतलब एक डॉग ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ वो डॉग जो डॉग काटने आया था, वो मैंने मैम। लिखा है। हाँ, और वो पता है क्या, मेरा बेटा रिमाइंड करा रहा है, हाँ मम्मा आपने लिखा। मैंने कहा अच्छा। वो मैंने जो लिखा। रियल सिचुएशन है, वो रियल सिचुएशन है। वो मैम मेरी जो नोरा बार भाग गई थी और वो उनके बड़े बड़े डॉग्स थे, वो इसके पीछे लग गए। और ये तो क्यूट सी छोटी सी, किसी को कुछ कहती भी नहीं। और ये डर गई। वैसे इसको कुछ करना नहीं था उन्होंने, पर उनके लिए बड़ा ये यूनिक पीस था, उनके जैसा भी और उनसे अलग भी। तो वो एक्साइटमेंट में इसके पीछे आ रहे थे बहुत तेजी से। पर ये फिर मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे, उन्होंने बीच में स्टैंड किया और उन्होंने उस कुत्ते को रोका। वो डरते हैं बड़े कुत्तों से, पर उन्होंने अपना सारा डर इधर उधर फेंका और मतलब इसको बचाने के लिए बीच में खड़े हो गए। और हाँ, और फिर ये भागी आई घर और जोर जोर से चीख रही थी, तो मैंने फटाफट गेट खोला और इसको अंदर किया, तो फिर वो हटे। Actually, ma'am had experienced and explored everything. हाँ, अब देखो Nothing. एक्सपीरियंस एज के साथ भी होता है ना। आप अभी Yes, मेरे ma'am. से आधी से भी It आधी is. की हो गई, ठीक है। Yes. तो फिर वो भी एक्सपीरियंस आपकी जब एज आएगी, आपका भी एक्सपीरियंस आपका शायद Yes, उससे भी ma'am. ज्यादा हो जाए, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो मैम जो ऐसे हैं आपने लिखे हैं मैम? ये ऐसे पता है क्या, मैंने 2006 में लिखने शुरू करे थे, पर देन वंस माय सन जॉइंड इन एंड वंस वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, हमने रीराइट करने शुरू कर दिया है। ओके। और क्योंकि पहले ना कैसे भी उठा के कुछ भी लिख देते थे ऐसे में कि एक बच्चों को आइडिया मिल जाए कि ऐसे है, बट अब आइडिया लगा है कि ओके देयर इज अ पैटर्न जिसके हम बच्चों को कराएंगे
तो फिर वो कर पाएंगे इजीली, और हर पैटर्न, हर एक टाइप का ऐसे उस पैटर्न से लिखेंगे तो कुछ सीख पाएंगे, और एग्जाम में कोई भी ऐसे आ जाए तो लिख पाएंगे। अब हमने सारे रीराइट करने शुरू कर रहे हैं। काफी इस जो 2021 एडिशन है उसमें ऑलमोस्ट हाफ एसेज रिटन है, पर अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जो 10-12 साल में लिखे थे वो बहुत जल्दी सारे रीराइट नहीं होने वाले। एक ऐसे को 4-6 घंटे लग जाते हैं पूरा एक्सेस करके रीराइट करने पे, पर जो तरीके आपको बता रहे हैं ना उनसे ही रीराइट कर रहे हैं। क्योंकि मैम एक्चुअल में ये होता है ना कि अगर 40 मिनट्स में आपको कोई राइटिंग के लिए बोलते हैं तो और 2 घंटे की राइटिंग में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि आप 40 मिनट्स में इतना, पर हमारा जो मेथड है ना, हमारा मेथड यही है कि आपका आधे घंटे में ऐसे खत्म हो, ठीक है? that is what we plan to do in our teaching, कि टाइम मैनेजमेंट कर पाए बच्चे। that is it. मैम ग्राफ में तो अभी पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पहले तो टाइम लग जाता था। ग्राफ आपने जो सिखाया ना उसके बाद तो मेरा काफी इम्प्रूव हुआ है। आप ना वो जो वीडियोस हैं हमारे 10 मिनट्स में ग्राफ एंड 15 मिनट्स में ऐसे, हाँ। को ना 2-2 3-3 बार जब भी टाइम मिले एक को पकड़ के 2-3 बार देख लो, ठीक है? मैडम वो क्या है, मुझे भी सेंड करो ना। वो ना मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। हमारी वेबसाइट पे ना उसका लिंक है एकेडमिक राइटिंग, उसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे यूट्यूब के भी। You can go. Okay, you will get. Thank you, mom. Yeah. Okay. So now we'll go to the follow-up questions, and one by one you will be answering. तो पहले Amanpreet, you will be answering this set. You are ready? Okay. मेरे को लगता है ये हमने कराया था. Besides the animal you just spoke about, what other wild animals are there in your country? Aman, are you answering or should I ask somebody else? Yes, ma'am. Okay, Amandeep. मैंने अमनप्रीत को बोला, ठीक है? अमनदीप आप आंसर करो चलो. Besides the animal you just spoke about, what other wild animals are there in your country? There are various types of wild animals in our country such as giraffe, elephants, tiger, lion, and so on. Okay, अमन मैं आपको ना एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, पीछे से आवाजें आ रही हैं, उसके बाद आप ना अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देना, ठीक है? Okay, in general, how do people in your country feel about wild animals? Some people are very scared from wild animals. On the other hand, some people are very passionate about wild animals. Okay, so some people are scared. About नहीं होता, off होता है, from नहीं होता, off होता है, of wild animals. Okay, and some worship them. Okay, some worship them. Worship भी करते हैं ना wild animals की? Yes, ma'am. Okay, yes नहीं होता, yes होता है. Yes. हाँ, yes. Okay. Next, ये कुछ some. Okay. Ma'am, please include me today. Samiksha here. Okay, Samiksha. Next. Okay. In general, what is the attitude of people in your country towards wild animals? I think that's depend upon the situation. Some people scared. एक मिनट. अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना अमनदीप. Yes, ma'am. आप 1 साल प्रैक्टिस कर लो स्पीकिंग की, पर अगर आपने दैट्स डिपेंड बोल दिया ना तो 5.5-6 क्रॉस नहीं होने वाले. Yes, ma'am. Yes बोल दिया तो बिल्कुल ही नहीं क्रॉस होने वाले 5.5. Yes है, Jess नहीं है, J से नहीं है, Y से है. दूसरी बात, that's depend गलत है. क्या होना चाहिए? It's. That depends. Yes, that depends. That's depend कर दोगे तो बैंड नहीं आने वाले हैं. ये समझ लो, इसको लिख लो कहीं. That's depend is wrong. एक that's depend लिखो और बड़ा सा क्रॉस मारो उसके ऊपर. और इट्स डिपेंड भी गलत है. इट डिपेंड्स होता है, दैट डिपेंड्स होता है. ओके, इट्स डिपेंड भी गलत है, दैट्स डिपेंड भी गलत है. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से पूरा अच्छा 7 बैंड का करके आते हैं, फिर 5.5 आते हैं स्पीकिंग में. ओके, ये गलती को आपको ओवरपावर करना है हर हालत में. ओके मैडम. यस, दैट डिपेंड्स. दैट डिपेंड गलत है. That depends. देखो S की पोजीशन 5.5 और 7 का फर्क ला रही है. Okay. That depends आएगा. Is it okay? Yes, that depends is okay. Ma'am, we can start from in my opinion. Yes, you can say in my opinion it depends.
Okay, you can say that, but see that's depend बोल दिया ना तो गड़बड़ है। अब वो स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंस से अच्छा बोल रही है, पर अब that's depend आ गया ना तो वहाँ वीक पॉइंट सामने आ जाता है एग्जामिनर के। Okay? मैम हाँ मैम ये कैन वी कौन सा यस यस स्पीक। मैम ये कौन सा नंबर का क्यू कार्ड का फॉलो अप्स है? ये बेटे 24। ओके मैम। मैम इट डिपेंड्स सही है कि नहीं? इट डिपेंड्स भी ठीक है, दैट डिपेंड्स भी ठीक है, इट्स डिपेंड भी गलत है, दैट्स डिपेंड भी गलत है। ओके समझ गए? मैम एक बात और पूछनी है, ये ऐसे कि आई बिलीव्स दैट आएगा या आई बिलीव दैट? आई बिलीव दैट 5.5 बैंड, आई बिलीव दैट 7 बैंड। आई बिलीव दैट आएगा ना मैम? ओके मैम जब हम फॉलो अप्स को आंसर करते हैं तो इट इज नेसेसरी कि हम आई बिलीव या इन माय ओपिनियन ये सब लगाए या डायरेक्टली आंसर दे देंगे तो भी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपको ना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि ऐसे करना है या वैसे करना है या ये बोलना ऐसे बोलना, ऐसे नहीं स्ट्रेस लेना। आपको सिंपल अपने आंसर देने हैं। जैसे आप अपने कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका जवाब कैसे देंगे, आप उसको थोड़ा बनाने की कोशिश करोगे ना तो आपकी वो नेचुरल वो चीज चली जाएगी और हाई स्कोरिंग नहीं जाएगा। जी हाँ मैम। If you naturally speak, if you naturally speak those words like furthermore, moreover, जो कि मैं तो कभी रूटीन लैंग्वेज में कभी बोलती नहीं हूँ, तो अगर आप नेचुरली बोलते हो तो चलेंगे, नहीं बोलते हो तो ऑड लगेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके अब कंटिन्यू करो आंसर अमन। हाँ एक मिनट, मैं सबको फिर से म्यूट कर रही हूँ। हाँ अब अमन, in general what is the attitude of people in your country towards wild animals? That depends on the situation. Some people scared from wild animals. Some people are worship of wild animals. आपने आर ना some people scared लिखा है, वहाँ आर आना है, और some people worship है, वहाँ आर नहीं आना है। ठीक है, some people are scared and some people worship them. ठीक है, okay. Do you like wild animals? I like wild animals. I have no any chance to see wild animals. Okay, अमन आपका आज लर्निंग कर्व बहुत हो गया, अब मैं किसी और को दे रही हूँ। पहली बात आप सुनो, That's depend, it's depend आपने सीख लिया आज। Yes. ये चीज आपको आपका पूरा ओवरऑल स्पीकिंग में आधा बैंड आप ले जाने वाली है, सिर्फ ये एक गलती। ओके दूसरा जो नो एनी आपने बोला ना, आप कोई भी जना नो एनी कभी भी बोलोगे ना 5.5 नहीं क्रॉस करेंगे स्पीकिंग में। I don't have. नो एनी इज रॉन्ग इंग्लिश। Yes ma'am. हाँ नो एनी ना लिखना है कभी, ना बोलना है कभी। ओके नो एनी इज रॉन्ग इंग्लिश, बहुत बच्चे यूज करते हैं। I have no any this, I have no knowledge of this, I have no any knowledge, ये गलत हो जाएगा। Okay? I don't have knowledge बोल दो। I don't have knowledge of this is correct, but I have no any तो कभी इकट्ठा आना ही नहीं है। No any वर्ड ही नहीं है मैम कोई। हाँ कुछ नहीं है, ठीक है। Yes ma'am. Okay, अब next student समीक्षा आ रही है? Yes ma'am, yes. In general, do you think people like wild animals? In general, I don't think people like animals, but some of them love them because of their taste. And whenever people taste, according to the taste, what we can say that आप टेस्ट ऐसे लग रहा है जैसे उस खाने में उनको स्वाद लगते हैं वो। what we can say that according to the taste of the according to the some people just love watching because they are fascinated by these creations of nature, creations of God. Okay, so they just love them. They love watching Discovery Channel, noting what wild animals, how they live, what they do. Okay. Okay. इनमें आता है, तो ऐसे टेस्ट बोल दोगे वो अजीब लगता है, वो लगता है जैसे टेस्ट मतलब उनका स्वाद, वो स्वाद लगते हैं उनको खाने में। Okay, I can say that according to their interest. हाँ, so if वो आपका people like वे में था, पर डिफरेंट लग रहा था, it was giving a different touch. Okay. Okay ma'am. Are there any wild animals that you dislike and why? Yes, I dislike snakes because I'm not
very fascinated with reptiles because and also whenever I just saw the lizard, I can imagine a snake is going over my wall. So I don't like snakes at all. Do you like lizards? No, I Oh no. So you can say I just I feel just they are very hate lizards. creepy. They're very I don't. creepy. I don't like snakes because I feel they're creepy, and also I'm afraid of a snake bite. Okay, like that you can say. What about lions and tigers? Do you like them? Are they, after all, they sometimes eat people? Creepy. Do you like lions and tigers? Yes, I love very giant, and they have like a feeling of a kingdom. For example, it is called that lion is the king of jungle, and they can show them that thing into their in the appearance. And also, I love watching them in zoos, and in all over the TV. ठीक है. This is In what. your country, are people's attitudes towards wild animals today the same as people's attitudes in the past? Today people have different type of attitude towards the wild animals. Today they are wild peoples are more interested in wild animals, and also they have a sense of responsibility that we need to rescue if they are in trouble. And also nowadays no people harm the wild animals much as they were before. हाँ, ये बोल सकते हो आप कि today people have become aware of the importance of wild Aware animals. Earlier people were afraid of them, they worshipped them, and they even killed them. Okay, but today people are more aware about the importance of wild animals. So animal essays are all important. Indian government also run the policy Save Tiger. Yes. Okay. So now next cue card is favorite weather and favorite season. Yes. And the student who's going to answer is Prajisha. Ma'am, हाँ समीक्षा जी. है. Ma'am, हाँ. ma'am, I'm still at 6.5. एक जना बोलो at a time. हाँ. Ma'am, I'm still at 6.5. नहीं समीक्षा, डेफिनेटली a 7. आप ना ये आपकी कोई ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो. इफ यू जस्ट गो थ्रू द आंसर्स, इफ यू हैव इनफ कंटेंट टू स्पीक, यू विल नेवर गेट लेस देन 7. ओके, आपके नहीं आएंगे 7 से कम, कभी भी नहीं आएंगे. आपके पास बस कंटेंट होना चाहिए. ठीक है, गो थ्रू. She is asking about the word creepy, like creepy किसको बोलते क्रीपी हैं? और रेंगने वाला क्रीप करता है, वो मेरे को नहीं अच्छे लगते. क्रीपी रेप्टाइल्स आर creepy actually होता है जो haunt करते हैं. creepy गंदे लगते हैं नहीं, जो हाँ वो गंदे उसको लगते. बोलते क्रीपी ना नेगेटिव वर्ड है, तो क्रीपी लगते हैं. सो आई फील क्रीपी. ये आ गया मेरे पैर निबल करने. नॉटी नो नो. ओके, पोली नॉटी नो ला जा प्लीज. Okay. So next question is to Prajisha. Prajisha, you were there? Yes, ma'am. Do you often pay attention to weather forecast? To be frank, I'm not that much interested in weather forecast or the news related to weather. If I'm planning to go outside for any shopping Prajisha, or I'm sorry, any but outing, I आपकी usually just listen to me. आपकी ना आवाज सही नहीं आ रही है. बाकियों को सुन रही है properly? नहीं मैम. No, ma'am. Prajisha, I'm going to give to somebody else because we can't make out Can at I all what you are saying. Okay? Can I? हाँ, yes, Rajneet. Yes. Okay, ma'am. Okay. Do you often pay attention to the weather forecast? Yes, I do pay attention to the weather forecast. Actually, this is the first thing I would do getting up early in the morning, and that what kinds of clothes I have to wear today so that I do not feel. Rajneet, आपने बोला what types of cloth have to wear? Cloth गलत होगी pronunciation. Clothes. दस. अच्छा सुनो, अगर जो इंडिया में है ना, वो उनका आंसर और जो कनाडा यूएस में बैठे हैं उनका आंसर इसका डिफरेंट होगा. हाँ मैम, यहाँ तो चेक करके निकलना पड़ना है.
हाँ वहां पे चेक करके निकलना पड़ता है, बिकॉज टेम्परेट एरियाज में ना जो वेदर फोरकास्ट है ना वो सही जाती है, वो बहुत एक्यूरेट होती है, और ट्रॉपिकल एरियाज में वेदर फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं होती है, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी इट इज नॉट पॉसिबल टू बी सो एक्यूरेट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है कि अगर अंदर बोल रहे हैं ना वेदर फोरकास्ट वाले कि आज क्लाउडी होगा, आज ब्राइट एंड सनी होगा, तो बाहर रेनफॉल उस टाइम ही हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पर टेम्परेट में अगर वो उन्होंने जो भी बोलना है वही वही होना है, ठीक है, जो बोलना है वही होना है। तो ये इसलिए जो टेम्परेट एरिया है वहाँ लोग बहुत ध्यान रखते हैं वेदर फोरकास्ट का, कि अगर कुछ कुछ नेगेटिव है तो फिर बाहर भी निकलना अवॉइड करते हैं, बट इट इज नॉट देयर इन आवर एरियाज इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो आप बोल सकते हो जो इंडिया में है वो बोल सकते हैं कि आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट। हमने कभी देखा है वेदर का फोरकास्ट बाहर निकलने से पहले? No. पर बाहर मैंने नोट करा कि सब लोग ध्यान देते हैं वेदर फोरकास्ट पे, ठीक है। Also, you have to carry your snow boots with you. हाँ and हाँ बिल्कुल everything. ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है मैम एक बार ये आंसर फिर से बोल दीजिए आप एक बार, So you can जो say अभी that फ्रेम करा था। अगर इंडिया में है तो आप बोलो कि नो आई एम नॉट मच वरीड अबाउट द वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट्स बिफोर गोइंग आउट, आई जस्ट गो आउट इफ आई हैव टू गो आउट, आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट दैट। बट व्हेन इफ यू आर फ्रॉम कनाडा और फ्रॉम यूएस, वहां पेपर दे रहे हो, वहां बोलना यस आई डू अर्ली मॉर्निंग आई डू लिसन टू द वेदर फोरकास्ट एंड प्लान माई डे अकॉर्डिंगली, वेयर द क्लोथ्स अकॉर्डिंगली, प्लान माई डे अकॉर्डिंगली। बिकॉज एक दूसरी बात है वहां पे ना हर रोज का वेदर बहुत डिफरेंट होता है, आज बहुत ठंड है तो कल बहुत गर्मी हो सकती है, और यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि अगर सर्दियां चल रही हैं तो स्वेटर कोट पहन के ही निकलना है, ठीक है। वहां पे हर रोज का वेदर भी बहुत डिफरेंट होता है कई बार, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट विद मी ओवर देयर, ठीक है। हाँ सो आप सीधा सिंपल ये बोल सकते हो, जो यहाँ पे जिन्होंने पेपर देना है इंडिया में बोल रहे नो आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट द वेदर फोरकास्ट, ओके। आपको किसी ने उन्होंने कुछ नहीं, आप बोलो कि आई जस्ट बिकॉज इट इज क्वाइट लाइक if winter season is there I dress up accordingly and go out, if it's summer I dress up accordingly and go out, and the weather forecast has not much meaning here, okay. आप नहीं ध्यान देते हो, बस अपना बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वेदर affect the activities people do? Yes, Rajneet. So weather has a profound effect on the activities people do. For example, in winters, you can't do much more. You can't do outdoor activities, while the indoor activities like bowling and going to the casino is much more liked by the people. While if there is summers, the people would like to go outside, go to beaches, play volleyball and do some activity in the open ground. So and even the weather has effect on your mental stability too, because in cool weather and in spring weather you are much more calm and enjoying the nature, and while in the winters you are sitting inside and you just have coffee in your hand and you're looking on the towards the walls and nothing much to do for you. Yes, and you know I wasn't much aware of it, but it's a fact that too cold temperatures are very depressing for people. Depressing. Okay. Blue, ma'am, here they say something like blue baby. That's like after pregnancy, शायद वो baby blues क्या होते हैं ma'am? Blues of every kind. वो तो वो तो postnatal जो after delivery depression होता है, that is also there. Depression. पर उसका इसके साथ relation नहीं है बिल्कुल weather के साथ. Why do some people dislike kinds of weather? So as the weather has a great effect on your well-being, so people who are more towards the nature, if they are asked to sit at home because the weather is not good, it's too cold outside, definitely they would get depressed and they won't be in good mood. And some people who are nature loving and want to enjoy the nature definitely won't like it that way. Okay. And
Okay. Does the weather have an effect on the economy? Yes, definitely. Yes. It has a great effect on the economy. Say, for example, if someone is dealing with the hosiery stuff, and the the very common example is due to the global warming. Say in India, the winters are shrinking, and earlier it used to be of 4 or 5 months. Now it is just of 2 and 2.5 months. So the whole hosiery factories which were working there are under loss, and they are not working that well, and it is not even good for our economy too. And similarly, the weather would have a lot of effect on the economy. This is one example, but there You can are also say weather has effect on the economy. In places where skiing was the source of income, that has also come down because the snow is for much less time now. Okay. So and like the that other also. example could be crops too, Crops too, because yes. So you can say a lot of things. आपने बहुत अच्छा बोला है, hosiery industry का example बहुत अच्छा दिया है. See, you can extend your answer with an example. It doesn't matter. आपने एक point दिया, आपने example बोल दिया. You spoke 4-5 sentences. It's very good for the speaking. Okay, speaking में कोई matter नहीं करता. उन्होंने सिर्फ 11 to 14 minutes you've got with you to tell the examiner that you have English in you, you can speak English, and that is enough to get good band score. Okay, too many points बोलने की जरूरत नहीं है. एक point बोल दो, उसका example बोल दो, जैसे रजनीत ने बोला अभी hosiery industry का. That's good enough. Okay, बहुत अच्छा है. Are there any differences in economic activity in different seasons? Yes, definitely. The economy will bloom if in different sectors of the country with different weathers. If there is a season, say in India, we have mostly for 6 months we have summers. So the cotton industry bloomed there, and the crops which could be cultivated specifically in the summer seasons would get more weightage at that point of time. So definitely the economy will. I think you are speaking much about your 7 band score. Okay, बस आप ऐसे naturally बोला हो, बहुत अच्छा बोला है. Very nice. Okay, thank you. Next, Can I? पता नहीं चलता परमिंदर. Yes, ma'am. हाँ बोलो. Next is a Q card is a part of the city or a town you enjoy spending time in. Okay. Okay. And the follow-ups are, how do public places change in towns or cities? I believe there has been a tremendous change in the town and cities as compared to the past time. Earlier, the beauty was natural. There was no any innovation done on there. परमिंदर अभी सब बच्चे बताएंगे आपने क्या बोला है. किसी ने नोट नहीं करा? No any, ma'am. हाँ, 2 बार बोल दिया परमिंदर, no any. Yeah, okay. हाँ, Okay. आप देखो कैसे आप 7 band plus का confidence से बोल रहे हो. आप no any जैसी बातें कराओगे और it's depend कराओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी. Yes, yes. We have to work on that. No any. So there has been a tremendous change. There has not been. Yeah. Okay. Okay. I'm starting from beginning. Okay. Well, I believe that there has been a tremendous change seen in the. What was the question? Sorry, I forget it. I forgot it. How do public places change? How या why है ऐसे? Why do public places change in towns or cities? Public places, how और why दोनों लगा के ये आंसर एक ही है. How do they change? Why do they change? How do public places change in towns or cities? Well, I believe there has been a tremendous change in the public places as compared to the past. Earlier, people were not interested to maintain and give them a time to renovate it, to get it maintained. And nowadays, people are more interested to spend time in these places. So they are more concerned to make it more beautiful. Earlier, people were more
were more spending their time with with the family members, but now people wanted to become free, and they I think you are not getting the question. The question is how do public places change? जो ये sample answer बना हुआ है उसके हिसाब से मुझे वो correct लग रहा है answer कि public places change because of public demand. Public places अब जो है with the changing times, the new generations want new and modernized facilities. Administration sometimes makes changes to public places like bus stops with the help of technology. For example, automatic ticket counters are there nowadays. Railway stations पे भी हैं, and apart from all people these want more of gyms in the parks also. Outdoor gyms भी लोग demand कर रहे हैं आजकल, बड़े शहरों में आ चुके हैं. Okay, because people are demanding them. People want to avail those facilities, and governments भी note करती है कि अगर open gyms बना देंगे parks में, तो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे और exercise करते हैं. They are motivated. Yes, ma'am. Here in the Chandigarh also open gyms are available in the parks. Yes. Usually people goes to in the evening or in the morning to do their activities. And people goes बोल दिया ना तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी. Yeah, Ma'am. People go. ठीक है. मैम हम वो भी एग्जांपल डाल सकते हैं ना कि आजकल गार्डन में वो बेंचेस लगाते हैं फॉर ओल्ड एज पीपल. हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है. There are benches for the elderly to sit. Okay, comfortable benches are there, backs वाले, seats है proper. Okay. Yes, comfortable benches. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. Why do what public places do old people usually go to? Old people love to spend their time on parks and in parks and local community centers where they get a chance to meet their friends of their same age. ठीक है. Okay. Why do young people like to go to public places? Well, I believe that young people visit these places to meet their friends and spend their time and get away from their hectic life, so they can get in touch with the nature and they can chat with their friends and share their ideas about the nature or the current. Will more people move to cities in the future? Well, I believe that as the economy is growing day by day, and cities are giving opportunity to the young people and opening new jobs, I believe that many young generation will migrate themselves to the cities. अच्छा ये चलो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि हम ना 3-4 डेकेड्स पीछे हैं डेवलप्ड कंट्री से. अभी 3-4 डेकेड्स है, थोड़ा मार्जिन कम हो गया है, पर वहां पे ये ट्रेंड आ चुका है कि लोग अपने घर जो हैं वो सबर्ब्स में और मतलब वुडेड कम्युनिटीज थोड़ा दूर बना रहे हैं शहरों से, एंड दे आर फार्म हाउस में रहना पसंद कर रहे हैं आज की जनरेशन. Because ma'am pollution is increasing day by day in the cities. Day by day, yeah. तो ये कह सकते हो कि too much hustle and bustle in urban areas, so people like to live in. अगर फ्यूचर का पूछ लिया तो फ्यूचर में बोल सकते हो द ट्रेंड विल बी रिवर्स्ड. आई थिंक मोर पीपल विल लव टू लिव इन द rural areas as in urban areas to the countryside, in the countryside, not urban, rural. Okay. Because they want a pollution free atmosphere, and you know the transport system is so fast that they can go and avail the facilities of the cities anytime. Okay. But for living they will prefer the countryside. Okay. There are too much hustle. There are too much hustles and bustles in urban side, so they prefer to live in countryside. Hustles and bustles गलत है. Hustle and bustle आएगा. S के साथ बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. Okay. Hustle and bustle बोल रहा है. There is too much hustle and bustle in the cities, and people want quiet atmosphere. Okay, ma'am. Okay. Quiet atmosphere. Thank you. Hustle and bustle can we? हसल का मतलब है शोरगुल, मतलब शोर शराबा, ये जो बहुत ज्यादा क्राउड. हसल क्या बोला? हसल एंड बसल. हाँ, HUSTLE BUSTLE, हसल एंड बसल. अफरा तफरी. हाँ, अफरा तफरी. अफरा तफरी ये कोई गुजराती मूवी मैम कैन वी गिव? ये गुजराती नहीं मैम, है कोई अफरा तफरी? नहीं मैम हिंदी है. देखिए मैम ये अफरा तफरी मूवी है. हाँ मैंने देखी है गुजराती मूवी. हाँ बहुत मैंने देखी है.
ma'am. Ma'am, can we give the example of a transferable house? नहीं, Hello? इतना बोलने की नौबत ही नहीं आएगी. ट्रांसफरेबल हाउस मींस आप हाउसेस ही पूरे ट्रांसफर कर देंगे विलेजेस को. नहीं हाँ. नहीं मैम, आजकल वो फॉरेन में वो ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने तो क्या पूछ क्या लिया. ट्रेंड चल रहा है? मैम वो जैसे सब अलग अलग होते हैं ना कैरावैन कारण. टाइप है ना, वो तो कैरावैन हो गया, कैरावैन. कैरवन हो गया. हाँ, वो मैम अच्छा मोबाइल, Yes. वो जो पूरी अपनी मोबाइल कार वाले. पूरा घर लेके हाँ. कहीं पे भी. जी जी. यस. तो हाँ. हाँ. ऐसे ऐसे वो यू नो दैट, या तो वो फैड है बहुत रिच का कि अपना उनका घर कहीं पे है बहुत बड़ा वुडेड कम्युनिटी में, और उनका एक फैड है कि 4-6 महीने अपनी गाड़ी में स्पेंड करेंगे. वो ऐसे चलता नहीं है जब आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं और आपकी जॉब होती है, वो नहीं चलता. वो फैड है ऑफ द वेरी रिच, जिनका जॉब कहीं से भी हो सकती है और कुछ भी कर सकते हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर विद द कॉमन मैन. ओके, चलो एनीवे. ओके मैम. बिल गेट्स बनना पड़ेगा मैम उसके लिए तो. A famous person that you are interested नहीं, in. बिल गेट्स की क्या जरूरत, कपिल के पास की है. हाँ. Ma'am, may I answer? हाँ जी सुख. Yes. अच्छा, क्यू कार्ड है. Describe a famous person that you are interested in. और उसके फॉलो अप्स है. ठीक है. Yes. अच्छा, जो हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं उनके बेस पे एनिमल्स वाले सारे एसेस गेस्ट वर्क में आ जाते हैं, और जो ये रूरल अर्बन एरियाज वाले एसे हैं वो गेस्ट वर्क में आ जाते हैं. जिनमें भी रूरल एरियाज अर्बन एरियाज है वो सारे एसेस कर लेना. ठीक है. और अभी जो हम क्यू कार्ड के फॉलो अप्स कर रहे हैं इसके बेस पे सारे एसेस फेमस पीपल वाले, सेलिब्रिटीज वाले, ठीक है, वो सारे एसेस जिनमें ऐसी वर्डिंग है दे बिकम गेस्ट वर्क. ठीक है, ये आप अच्छे से कर लेना. So now you will be answering, and Yes. this is the last follow-up session of today. After this, I have taken out a reading जो कि past exam reading है. It has come in recently. Okay? और वो हम आज करेंगे मिलके 10 minutes के break लेके. ठीक है. अब next is what type of people are famous in your country, Sukh? Well, there are number of people which are famous in my country, like character, Bollywood stars, politicians, and singers, dancers, and many people who are attracts more crowds. They become famous in my country. Crowds नहीं होता, crowd होता है. ठीक है. And people के लिए who होता है, which नहीं होता. ठीक है. हाँ. Next is how do people become famous nowadays? Well, with the help of technology, many people are become famous nowadays. Like R के बाद ना becoming आता है, R become नहीं होता, R becoming. Okay? Yes, ma'am. हाँ. And with the help of technology, ठीक है, वो कह सकते हो. आजकल टेक्नोलॉजी भी लोगों को ओवरनाइट फेम दिला देती है. कोई सिंगर है, अपना गाना डाले, हो सकता है उसको ओवरनाइट ही बहुत सारे व्यूज मिल जाएं. फॉर एग्जांपल टिकटॉक. टिकटॉक तो बैन हो गया, अब उसकी एग्जांपल भी मत देना. ओके. और कोई एग्जांपल यूट्यूब की दे दो. Ma'am, Yash Raj Mukhate, we can say that the person who sing that like Ma'am, we compose can that song Rasode Mein Kaun Tha. He became star overnight. तो ऐसे आपको एग्जांपल अगर आपको पता है तो आप दे देना. ठीक है. Also we can talk about blogging and vlogging. Like nowadays people are YouTube doing. vloggers. ब्लॉगर्स हैं जो उनका वो Yes, फेमस हो जाते हैं YouTube because people like what they put on their blogs. Okay. Cookery Yeah, channels. because of their content. Yes. Okay. So how do people become famous nowadays? Nowadays, media. One thing is media. People who have talent, they become famous overnight because of the media. अब ये media में ही आ जाता है technology, because internet is also part of the media. ठीक है, media. तो ये आप बोल सकते हो media is one thing, and second is politicians because of their oratorical skills. ठीक है, politicians become famous because of their oratorical skills. Oratorical skills पता है ना क्या होती हैं? Oratorial या oratorical, बोलने की skills, public speaking. Public speaking. ठीक है. फिर जो आपको पता है फेमस, जो एक तो वर्ड है फेमस, दूसरा वर्ड है इनफेमस. इनफेमस का क्या मतलब है? ना हो मैम, जो पॉपुलर ना हो. हम बुरी तरीके से फेमस, किसी नेगेटिव चीज के लिए. फेमस बट फॉर रॉन्ग रीजंस. अब फेमस तो ओसामा बिन लादेन भी था. इनफेमस. Okay. And people who are like
और कौन? आप सद्दाम हुसैन और ऐसी एग्जांपल्स ले सकते हो इन फेमस. दीप सिद्धू मैम. Famous but for the wrong reasons. हाँ. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim famous but for the wrong, infamous हो गए ना. So अच्छा, and some people are born famous. Yes ma'am, because their parents are famous celebrities. See, famous being Taimur Ali born Khan. and Taimur Ali Khan. आराध्य बच्चन. हाँ. अब देखो Vamika. Because of their Yeah, Vamika Ar- also. famous background. Vamika. आर्यन खान, शाहरुख खान का लड़का. हाँ. So they are famous because they are born famous, born with a, born to famous parents, and so they are born famous. Yes. That is it. ठीक है. So आपको ये ऐसे आ सकता है कि फेम, फेमस वगैरह ये सारे ऐसे सेलिब्रिटीज, फेम, ये वाले सारे ऐसे कर लेना. ठीक है. Can we say popularity is inherited by their parents or from their parents? इनहेरिटेड होता है जीन्स में. Yes, ma'am. पर वो फिर गलत हो जाएगा ना, वहाँ इसका रॉन्ग यूज हो जाएगा. Yeah. ठीक है. Okay. हाँ. Born with बोल सकते हैं. हाँ, Born with. they are born famous, they are born into rich families, so they are born famous. अब अंबानीज के बच्चे हैं, they are born famous. Yeah. ठीक है. उनके बच्चे आगे जो हैं, चलो वो जब बच्चे हुए थे तब शायद उनके फादर इतने नहीं थे, बट धीरे धीरे हो गए थे. So now what is happening in their families, now they are that's luck also which is giving them fame. ठीक है. Okay. What qualities, okay, what is the difference between people who were famous earlier and who are famous now? Well, earlier, mostly people were famous who had achieved awards, and some people had good singing or dancing talent. But nowadays, with the help of technology, many people are becoming famous. And आप अभी मेरे को जब आप आंसर बोल रहे हो ना, मेरे मन में ये आ रहा है, आप ये भी लिख सकते हो, जो पहले टाइम की जो फेम थी ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग फेम थी. Yes, ma'am. Yeah. But यही मैं सोच रहा था मैम. now the fame, nowadays the fame is fleeting. I mean, today one person is famous, the second day is forgotten. Absolutely. Okay. पहले नहीं था ना ऐसे. जो फेमस था वो फेमस था सालों के लिए. लोग उसको जानते थे because एक तो कम लोग फेमस थे और जो थे वो बहुत फेमस थे. और दूसरा, they were famous for a long period. Today the fame is very short lived. It is temporary fame. ठीक है. इंडियन आइडल में जो विनर है आज फेमस है, उसने जीता, 2 महीने बाद लोग भूल भी जाते हैं कौन जीता था. मैम, फेमस और सेंसेशन में अंतर क्या है? सेंसेशनल होता है जो एकदम से मतलब हिला के रख दे सबको. फेमस इज डिफरेंट ना. फेमस इज अ पर्सन. सेंसेशनल कोई न्यूज हो सकती है, पर्सन नहीं होएगा. Sensational for the some time only. हाँ, सेंसेशनल न्यूज हो सकती है. मैम, जैसे लोग कहते हैं सोशल मीडिया सेंसेशनल हो गया है, मींस हाँ, तो जैसे कि एक प्रिया प्रकाश थी मैम, कोई हीरोइन थी साउथ की. हीरोइन थी, वो ओवरनाइट फेमस बन गई. यस मैम. तो ओवरनाइट फेमस सोशल मीडिया से बनी ना, तो इस वे में पर पीपल सेंसेशनल नहीं ना होते, पीपल फेमस ही होते हैं. और किसी चीज को बोलना तो पॉपुलर है. अनसेंसेशनल इज न्यूज या मीडिया. ठीक है. जो सेंसेशन क्रिएट कर दे, जो सेंसेशन क्रिएट कर दे, जो एकदम से कुछ मतलब लोगों के मन में कुछ क्रिएट कर दे. भाई मैम, अगर ताजमहल को बोलेंगे तो फेमस लगाएंगे, पॉपुलर लगाएंगे? फेमस उसको ताजमहल ना पर्सोनिफाइड हो जाता है, फिर सिंबल ऑफ लव, तो ताजमहल के लिए दोनों वर्ड चलते हैं. ठीक है. ओके. व्हाट क्वालिटीज डू फेमस पीपल हैव इन कॉमन? Well, I think famous people should always be humble and they always respect to other देखो, एक तो रिस्पेक्ट के बाद टू नहीं आना, और दूसरा आपने आज एक गलती करी है, मॉडल वर्ब वाली. यस मैम. मैं आपको पूछ रही हूँ उनमें क्या चीज कॉमन होती है. आप कह रहे हो ये होना चाहिए. होना चाहिए किसने पूछा आपसे? सुख. Yes ma'am. अच्छा, आपको पता है there are 8 modal verbs, only 8. Can, could, will, would, may, might, shall, should. Okay? ये 8 modal verbs हैं. इनकी यूजेज अच्छे से कर लेना. ओके? इनको नहीं यूज करोगे तो नहीं बैंड आने अच्छे. गलत यूज करोगे तो और भी खराब आने हैं. सही यूज करोगे तभी 6 या 6 से ऊपर जाने हैं. और ये 8 है, 80 नहीं है, 800 नहीं है, 8000 नहीं है, ओनली 8. तो 8 वर्ड्स की यूजेज आप अच्छी कर सकते हो. Yes ma'am. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है व्हाट, हाउ मे आई कॉल यू,
तो आप बोलोगे यू शुड कॉल मी सुख। No. मे का जवाब मे में ही आएगा ना, यू मे कॉल मी। हाउ कैन आई कॉल यू कैन कॉल मी सुख। ओके, तो कैन का जवाब कैन में, मे का जवाब मे में, शुड का जवाब शुड में। अब ये डू, हाउ डू पीपल बिकम फेमस इन मेनी वेज। ठीक है, हाँ। What qualities do famous people have? Famous people have many qualities in common. They have some sort of talent. They have some sort of public appeal. Okay. We can say they are hardworking and punctual. Yes, all famous people are hardworking, punctual. ठीक है? They do have passion regarding some subject. Yes. ठीक है? What do you think about nepotism among the famous people? Nepotism का मतलब पता है आप सबको? Yes, ma'am. वंशवाद. नहीं, not वंशवाद. तो मैम nepotism means like भाई का भाई इसके साथ भाई बॉलीवुड में like Janvi Kapoor promoting Karan Johar has a good example. Nepotism is भाई भतीजावाद. Okay. करण जौहर एग्जांपल कहाँ होगा? कैसे एग्जांपल है करण जौहर? Kapoor से मैम, he's casting the famous personalities only like Alia Bhatt and Ananya Pandey. No, it's not nepotism. Nepotism is Janvi Nepotism है अगर मैं अपने जो मतलब अगर कोई बंदा अपने कोई जॉब देनी है, अपने भतीजे को जॉब दे रहा है, अपने भाई के बच्चे को जॉब दे रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने भाई के बच्चों को कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो नेपोटिज्म है। यस मैम। ओके, हम सिर्फ भाई के बच्चों को ही आएगा या कोई भी रिलेटिव को भी चलेगा? कोई भी रिलेटिव को चलेगा। नेपोटिज्म वही है। इन कपूर फैमिली, भांजा, बहन, मतलब अब बहन भांजा नहीं ना बोलते, भाई भतीजा ही बोलते हैं somehow। कॉलोकेशंस हैं, ठीक है। फेवर अवर क्लोज्ड वंस, नेपोटिज्म को। हाँ, नेपोटिज्म इज दैट। ठीक है, चलो ओके। तो ये हो गया आज की स्पीकिंग। I hope it was a learning thing. आपको सबको कुछ सीखने को मिला है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is it. अभी इसके बाद ना just in 10 minutes we'll get back for the reading and after the reading मुझे एक writing task है स्टूडेंट का, वो मुझे चेक करना है और मैं आप सबके सामने करूंगी। ऐसे ही मतलब मैंने ऐसे निकाला है पुराने स्टॉक में से, जस्ट टू टीच यू कि किस टाइप की राइटिंग में किस टाइप से बैंड आते हैं। ठीक है, तो आज एक वो उसमें है, दैट इज अ मैप। तो आई थिंक जीटी वालों के लिए नहीं होगा, तो जीटी वाले आफ्टर द रीडिंग क्लास एग्जिट कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, अभी रीडिंग क्लास है विच इज अ कंबाइंड क्लास फॉर बोथ एकेडमिक एंड जीटी स्टूडेंट्स। ओके मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम जैसे एग्जामिनर जब पूछता है व्हाट इज योर फुल नेम, तो उसमें मैंने सोचा है माय फुल नेम इज मिश्रिका लंबाते, आल्सो माय नेम इज वेरी यूनिक एंड स्पेशल एंड द मीनिंग ऑफ माय नेम इज लव ऑफ गॉड। तो ऐसा इतना बोल सकते हैं कि बस वन लाइन में जवाब देना है? नहीं, जब तक देखो मैंने पहले ये अपनी क्लास में बोला हुआ है कि जब तक आपको एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो नहीं करता ना। अच्छा, यस मैम, आप बोल सकते हो। ओके मैम, यस। चलो ओके बाय मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलो। मैम जो वाइल्ड एनिमल वाला, बोलो वाइल्ड एनिमल वाला। मैम इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जब हम जो क्यू कार्ड है मैम ये, हेलो हाँ बोलो। मैम इसमें ना मेरी स्पीकिंग टीचर बोल रहे थे कि जो वाइल्ड एनिमल का ना हमारे साथ सडनली हमारे सामने आए तब वो वाला क्यू कार्ड बोलना है आपको, ना कि जू वाला। नहीं जू वाला बोल सकते हो, ठीक है, सामने ही आ गया ना वो। हर किसी के सामने कहाँ आएगा कोई वाइल्ड एनिमल। ओके, मतलब जैसे वो एग्जांपल दे रहे थे कि मंकी का, कि शिमला गए हुए थे वहां वाइल्ड। हाँ मंकी का बोल सकते हो, पर मंकी इतना भी वाइल्ड नहीं ना रहा। ओके, जंगल्स वाला वाइल्ड, तो आप जू वाला बोल सकते हो रीना, नो प्रॉब्लम। और मैं वाइल्ड एनिमल में स्नेक को बोल सकते हैं हम? हाँ स्नेक को बोल सकते हो। स्नेक देखो 3 तरह के एनिमल्स हैं, पेट है, डोमेस्टिक है एंड वाइल्ड है। अब ना तो पेट में है स्नेक, ना डोमेस्टिक में है, तो वाइल्ड ही है ना। और जो मंकी है वो आजकल लोग पालने भी लग गए, आपको पता है? यस तो डोमेस्टिक में आ जाता है, फिर नो पेट में आ जाता है वो। मैम मैम हैंड मूवमेंट्स अलाउड नहीं होते स्पीकिंग में, मेरा फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल अलाउड होते हैं। एक्सप्रेशन तो मैम उसी से पता चलेगा। They should look natural. ओके, ऐसे थोड़ी कि बिना बात कैसे करते जाओगे, वो अननेचुरल हो जाएगा। ठीक है,
मैम ओके मैम, थैंक यू। हाँ बोलो। मैम जैसे अभी मास्क मैंडेटरी हो गया तो अभी मैं 2-3 दिन से मास्क लगा के प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब साइनस तो है ही मुझे, बट अभी मैं जैसे मुझे बहुत सफोकेशन होता है, तो मैं ऐसा क्या कुछ नहीं है करूँ? सफोकेशन। आप अपना मास्क ऐसा स्टिच करवा लो, आजकल बड़े अच्छे मास्क स्टिच होके आ रहे हैं जो आगे स्पेस दे रहे हैं नोज और माउथ में। ओके मैम। दे आर नॉट प्रेसिंग ऑन योर नोज। N95 वो आप ना उसमें देखना, यूट्यूब में आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे, आप किसी टेलर से बोल के वैसा स्टिच करवा लेना। मैंने अपने लिए सबके लिए घर में स्टिच करे हैं वैसे मास्क। ओके मैम, ओके। they are not suffocating at all. Okay, they Yes, don't touch your nose, they don't touch your lips and all. There is enough space. Okay, तो वो Yes, आगे से उसकी कटिंग है उस तरह की करवा के अच्छा सा बनवा लो मास्क। वो बिल्कुल उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा आपने मास्क लगाया हुआ है, वो तो भूल जाता है उतारना। ओके मैम। यस मैम। तो उस टाइप का मास्क बनवा लो। ठीक है, चलो ओके बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।